خداوند کا شکر ہو کہ جب ہم خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں تو خدا اپنے پاک روح کو ہمارے درمیان انڈیلتا اور ہمیں شاد کرتا ہے، ہمیں مسرور کرتا ہے، ہمیں بھر دیتا ہے اور ہم اس کے جلال سے معمور ہو جاتے ہیں۔ آج ایک بہت خوبصورت مضمون جو خدا نے میرے دل میں ڈالا اور ہم اس کے اوپر کچھ سیکھیں گے۔ تابعداری کے تعلق سے ہم چند باتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر ہر ایک شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب ہو، وہ بہت ہی سرفراز ہو، اس کی ہر ایک سمت میں ترقی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کسی جاب پر ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، وہ ترقی کرے اور وہ بڑا ہی جو ہے وہ ہر ایک بات میں جو ہے وہ سرفراز ہوتا چلا جائے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اور اس کے لیے ہر ایک شخص جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ مشقت کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بہت ساری ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ وہ کیا ہو۔ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں سمجھ بھی آتی جائے گی۔ جب ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں کسی چیز کی، اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم پروموٹ ہو کر آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہماری ترقی ہو جائے گی، ہم نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہر ایک شخص جو ہے وہ بہت سی مشقیں کرتا، بہت سی جو ہے وہ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اپنی عادات کو بدلتا ہے تاکہ وہ بڑھتا ہوا، ترقی کرتا ہوا اپنی زندگی کے ہر ایک سمت میں جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اور آج ہم اس تابعداری کے تعلق سے دیکھیں گے کہ تابعداری ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی برکات کا وسیلہ بنتی ہے، کون کون سی باتوں میں ہمیں سرفرازی بخشتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پطرس رسول کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ تابعداری کے تعلق سے جب میں دیکھ رہا تھا تو اس کے معنی جو ہے وہ بڑے ہی زبردست ہیں اور اس نے جو ہے مجھے بھی بڑی برکت دی ہے۔ تابعداری کا مطلب ہے کسی کے تابع ہو جانا، کسی کے ماتحت ہو جانا، کسی کو اپنا سربراہ مان لینا یا کسی کی حکمرانی کے اندر آ جانا، کسی کی رضامندی کے اندر جو ہے اس کی سرپرستی کے نیچے زندگی گزارنا رضا کرانہ طور پر۔ ایسے نہیں کہ کوئی زبردستی ہے، کسی نے پکڑ کر آپ کو جو ہے وہ اپنے ماتحت کیا ہو، بلکہ یہاں پر جو تابعداری جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی قید میں آ جانا، کسی کی گرفت میں آ جانا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا بوجھ ہلکا اور میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم دو بیلوں کو کسی جوئے کے اندر جوتتے ہیں تو وہ قید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ تو وہ جوئے کے اندر جو ہے وہ جوتے جاتے ہیں اور وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اس جوئے کی قید میں ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے بھی اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ میرا بوجھ ہلکا ہے اور میرا جوا ملائم ہے۔ تو یسوع مسیح کی تابعداری بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم اس کی تابعداری میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی قید میں آ جاتے ہیں، جب اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں،
तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ जाती है। हम खुद राई को छोड़कर, हम खुदगर्जी को छोड़कर, हम अपनी मन मर्जी को छोड़कर खुदा की मर्जी के ताबे हो जाते हैं। हम खुदा के कलाम के ताबे हो जाते, उसके रूल कुद्स के ताबे हो जाते हैं। तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर एक बहुत नुमाया और बड़ी तब्दीली जो है वो वाक़या होना शुरू हो जाती है। पतरस रसूल जब कलीसिया को ये खत लिख रहा है, तो मैं जब इस खत की स्टडी कर रहा था तो कलीसिया जो थी बहुत ही जुल्म के अंदर से गुजर रही थी, परसिक्यूशन का माहौल था और हर तरफ से कलीसिया को सताया जाता था। उनको अच्छे जॉब्स मुयस्सर नहीं थे, अच्छा रोजगार नहीं था। जहां कहीं वो जमा होते और इबादत करते, वहां पर उनकी तजलील की जाती, उनको बुरे नामों से पुकारा जाता। लेकिन मैं हैरान हूं कि पतरस रसूल कलीसिया को बड़े अजीब तौर से एक बात के लिए जो है तलकीन करता है, वो नसीहत करता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है ताबेदारी करो। और यहां पर जब हम पूरे इस खत को पढ़ते हैं तो 7 बार वो कलीसिया को ताबेदारी करने की तलकीन करता दिखाई देता है। मेरे अजीजों, इस पूरे खत के अंदर हमें ये दिखाई देता है कि पतरस जो है वो बड़े पूरे जोर के साथ रूल कुछ से मामूर होकर कलीसिया को एक ही बात के लिए तलकीन करता है। वो बीवियों को भी ये तलकीन करता है कि अपने शोहरों के ताबे रहो। वो कलीसिया के बुजुर्गों को तलकीन करता है कि वो ताबे रहें। वो नौजवानों को तलकीन करता हुआ दिखाई देता है कि वो भी ताबे रहें। हम सबों को वो तलकीन करता है। और आज खुदा का पाक रूह मुझे और आपको भी ताबेदारी के अंदर रहने के लिए जो है वो इनकरेज करता और सिखाता है। तो सबसे पहली बात वो कहता है तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। किसके ताबे रहना जी? बाज दफा हम बहुत सारी चीजों के ताबे होते हैं, लेकिन यहां पर पतरस रसूल उन लोगों का नाम ले रहा है जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, जो खुदा के चुने हुए हैं, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते हैं, जिनको यीशु मसीह ने अपॉइंट किया था, जो कलीसिया के बड़े सतून थे और रूल कुछ उनके वसीले से बड़े बड़े काम कर रहा था। खुदा अपने लोगों को इनकरेज करता है, नौजवानों को इनकरेज करता है कि बुजुर्गों के क्या रहे? ताबे रहे। ताबे का मतलब मैंने आपको समझाया बताया कि कैद में होना, किसी के हुक्म के मातहत रहना, किसी की सरपरस्ती के अंदर आ जाना, किसी के हाथ के नीचे आ जाना और उसकी बात को सुनना और मानना। लिखा है कि पूरे दिल से खुदावन का शुक्र करो। ठीक है, बाज़ औक़ात हम बहुत सारे काम करते हैं, आधे दिल से करते हैं। घर में बच्चों को जब कुछ तंबीह की जाए, कुछ कहा जाए, तो वो बच्चे काम तो कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? आधे दिल से, उनका दिल नहीं होता। लेकिन यहां पर जब हम इस बात को सीख रहे हैं तो वो कहता है कि नौजवानों को तलकीन करता है कि तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। ताबेदारी जो है वो एक मुश्किल काम है। ताबेदारी एक मुश्किल काम है, किसी के नीचे रहना, किसी के अंडर रहना। लेकिन जब हम पतरस रसूल और बाकी शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उन्होंने ताबेदारी कहां से सीखी? उन्होंने ताबेदारी यीशु अल मसीह से सीखी है। हालेलुया। उनका रोल मॉडल उनका मसीहा था जो इस दुनिया में आ गया और उसने अपने आप को खाली कर दिया। आइए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों का खत, पतरस जो था बड़ा जज्बाती शख्स था और ये बहुत सारे ऐसे काम करता था, फैसले करता था जो दुरुस्त नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यीशु मसीह को फॉलो करते करते, मसीह की जिंदगी पर गौर करते करते ये खुद भी मसीह का ताबेदार हो गया है और इसकी जिंदगी के वसीले से बहुत सी जिंदगियां जो है तब्दील हुई हैं। और अब वो कलीसिया को जो बहुत सी मुश्किलात में से गुजर रही है, परसिक्यूशन में से गुजर रही है, उनको तलकीन करता है। लेकिन उसका फोकस क्या है? उसकी निगाहें किस शख्सियत पर लगी हैं? वो यीशु अल मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यीशु मसीह हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जो कोई और नहीं मिलती है। आइए मेरे अजीजों,
जब हम फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल है, आला है। यीशु मसीह की जात जो है, यीशु मसीह का मिजाज जो है, यीशु मसीह का किरदार जो है, वो हम सबों के लिए बायस नसीहत है, बायस नमूना है। यीशु मसीह की जाते अकदस जो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, इब्तिदा में कलाम था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं। वो खुदा का कलमा है जो अजल से उसके साथ मौजूद है, जिसके बाद सब कुछ तख्लीक किया गया। वो सब चीजों का मबदा है, कोई चीज उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई है। यहां पर पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को यह कहता दिखाई देता है, मसीह के मिजाज की मानंद बन जाओ, क्योंकि उसने खाकसारी इख्तियार कर ली है। उसने अपने आप को, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने मिजाज में इस कदर हलीमी इख्तियार की है, उसने खादम की सूरत इख्तियार कर ली है। वो ताबेदार हो गया है खुदा के मिशन का, जो पैदाइश की किताब से हमें दिखाई देता है। खुदा ने कहा था कि मैं कुमारी से अबलीस के सर को, उसके बेटे से अबलीस के सर को कुचलूंगा। यीशु मसीह ने भी इस हुक्म की ताबेदारी की है, इस प्लान को पूरा करने के लिए जो क्या किया है, अपने आप को पेश कर दिया है। और जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे तो उन्होंने क्या कहा कि खुदावन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये है मेरे अजीजों ताबेदारी, ये है फरमा बरदारी। मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब हमारी मर्जी खत्म हो जाती, जब हमारी मर्जी सानवी हो जाती, जब खुदा की मर्जी हमारी मर्जी से बालातर हो जाती है, तो मेरे अजीजों हम मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे हो जाते हैं और खुदा हमारी जिंदगियों से बड़े बड़े काम करता और अजायब जाहिर होते हैं। और ताबेदारी ना करना जो है वो बाज़ औक़ात बल्कि हमेशा ही जो है बड़ी गिरावट का शिकार होता है। जब बाग़े अदन में हम देखते हैं कि आदम और हवा को खुदा ने एक ही हुक्म दिया, क्या कहा था उनको? एक ही काम कहा था कि ये फल नहीं खाना तुमने, और उन्होंने क्या किया? खा लिया। ताबेदारी क्या हुई? टूट गई है। और फिर उसके असरात, उसके सर्कमस्टेंसेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पूरी नस्ल इंसानी ने बर्दाश्त किए। तो ताबेदारी ना करना जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर गिरावट का शिकार होती है। हम खुदा के हजूर से बेदखल हो सकते हैं, हम खुदा के मसा से खारिज हो जाते, हम उसकी हजूरी, उसके इरादे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है कामिल नमूना है हमारे लिए। उसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, उसने खुदा की मर्जी को पूरा कर दिया है और हमारे लिए नजात के बड़े दरवाजे को खोल दिया है। अगर यीशु मसीह ताबेदारी ना करते, अगर यीशु मसीह मसलूब ना होते, अगर यीशु मसीह कफारा ना देते, अगर यीशु मसीह अपना खून ना बहाते, तो दुनिया का कोई शख्स खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता था। यीशु मसीह की ताबेदारी ने हैकल के उस पर्दे को फाड़ दिया है, उस दीवार को गिरा दिया है जो इंसान और खुदा के दरमियान हायल हो चुकी थी। और खुदा ने अपने बेटे के खून से, उसके कफारे से एक बड़ा काम किया है। एक और हम ताबेदारी की मिसाल को देखते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे किरदार ऐसे हमें दिखाई देते हैं जिनके वसीले से खुदा हमसे बात करता, हमें सिखाता और हमारी तंबीह करता है। आइए मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी
19वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे, 2 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, सो वो वहां से रवाना हुआ और साफ का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया और उन ही बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। ये हमने जो वाकया पढ़ा है, इससे पहले जब हम 19वें बाब को पढ़ते हैं तो खुदा ने एलिया को भेजा। ये एक पहाड़ में छुपा हुआ था और खुदा ने वहां पर इससे कलाम किया और खुदा ने इसको भेजा कि जाके अलीशा को क्या कर, मखसूस कर, क्योंकि तेरे बाद जो है वो मेरी खिदमत के लिए नबी के तौर पर मखसूस होगा। तो जब उसने अलीशा को जो है वो मखसूस किया तो लिखा है कि वो 12 जोड़ी बैल क्या कर रहा था, जोत रहा था। बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था उस वक्त के दौर का, और 12 जोड़ी बैल जिसके पास होते थे उसका बड़ा अच्छा कारोबार समझा जाता था और उनको बड़ी आमदन उससे मिलती थी। और ऐसा मालूम होता है कि ये उसके बाप का कारोबार था। और जब अलीशा जो है वो जोत रहा था तो एलिया उसके पास गया और उसने क्या उसको कहा, उसने कहा ये सारा कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा। क्या कहा उसको, बैल शायद छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, मेरे पीछे आ जा। तो मैं हैरान हूं कि कोई उसने हिचकिचाहट का कोई उसका आंसर नजर नहीं आता। उसने कोई उज़र पेश नहीं किया, उसने कोई ना नहीं की, उसने मुकम्मल ताबेदारी की है। उसने खुदा की उस आवाज को जो उसके लिए थी, अगरचे कि उसने आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन खुदा के भेजे हुए खादम की आवाज को उसने सुना है और मुकम्मल तौर पर क्या की है, ताबेदारी की है। उसने कोई उज़र पेश नहीं किया, उसने कोई बयानबाजी नहीं की है कि भाई मैं अच्छा भला बिजनेस कर रहा हूं, मेरी फैमिली है, मुझे किधर आप बुला रहे हैं साहब। उसने कहा कि जी मैं ये अपने माँ बाप को मिल के आता हूं, उनको चूम के आता हूं, फिर मैं तेरे पीछे आ जाता हूं। उसने कहा ठीक है। उसने अपने बैलों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ज़बा कर दिया, ठीक है, बिल्कुल खत्म किया है। और फिर वो क्या हुआ, अलीशा के पीछे पीछे रहा और लिखा है कि वो उसकी खिदमत करने लगा। बुलाहट क्या है, खिदमत करने की बुलाहट है। कोई स्टेज नहीं है, कोई बड़ा मर्तबा नहीं है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिली है। क्या काम है, अपने उस्ताद के क्या करना है, पीछे पीछे चलना है, उसकी ताबेदारी करनी है। वो ये जानता नहीं है कि खुदा ने उसको बुला लिया है, खुदा ने उसको चुन लिया है, लेकिन खुदा के नबी से उसके मुंह से निकले हुए लफ्जों ने जो है अलीशा के दिल को छू लिया और उसने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, मुकम्मल ताबेदारी की है। और वो जो है एलिया के पीछे पीछे जो है वो चलना शुरू हो गया। और जब सलातीन की दूसरी किताब हम पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब में देखें, जरा निकालिए मेरे साथ, दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब की 4थी आयत में यहां पर यह हुआ कि खुदा ने जो है वो एलिया को बगोले में आसमान पर लेकर जाना था और अलीशा को ये बात मालूम हो चुकी थी कि खुदा एलिया को लेकर जाने वाला है। और एलिया जो था उसको क्या कहता है, 4थी आयत में हम पढ़ेंगे, और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ताबेदारी है। एलिया इसको क्या कह रहा है, मुझे खुदा ने यरीहो को भेजा है, तो तू जरा यहां पर ठहर, मैं वहां से होकर आता हूं। कहते तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसा जबरदस्त शागिर्द है,
कैसा जबरदस्त ताबेदार शागिर्द है कि वो अपने उस्ताद को छोड़ना नहीं चाहता। उसके पीछे एक बड़ा मकसद था, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी जो ताबेदारी के बाद जो है उसकी जिंदगी के अंदर जाहिर हुई। हालेलुया। और वो वजह क्या थी? ताबेदारी के बाद क्या हुआ उसकी जिंदगी के अंदर? एलिया ने उसको कहा कि अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखे तो मेरी रूह का दूना मसा तेरे ऊपर ठहर जाएगा। हालेलुया। ताबेदारी जो है हमारी जिंदगी के अंदर क्या करती है? डबल ब्लेसिंग को लेकर आती है। ताबेदारी हमारी जिंदगी में, हमारी खिदमत के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे घरानों के अंदर, हमारे काम काज के अंदर डबल पोर्शन की बरकत को लेकर आती है। और जब हम देखते हैं कि अलीशा की जब नजर उस पर थी और लिखा है कि बगोला जो है वो एलिया को आसमान पर लेकर जा रहा था, तो एलिया की चादर जो है वो अलीशा के ऊपर गिर गई और खुदा के रूह का, एलिया के रूह का दूना मसा उस पर ठहर गया और वो अपने उस्ताद की मानंद वो सारे काम करने के काबिल हो गया, बल्कि उससे डबल मौजज़ात खुदा ने उसके वसीले से करवाए। यहां तक कि जब लिखा है कि अलीशा को दफन कर दिया गया तो उसकी हड्डियों से टच होकर एक मुर्दा जिंदा हो गया। खुदा की ताबेदारी, खुदा के खादमों की ताबेदारी, खुदा के कलाम की ताबेदारी हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा के मसा की बरकत को लेकर आती है और हमारी जिंदगियों के बायस बहुत सारे मुर्दे जिंदा होते हैं, बहुत सारे गिरे हुए उठ खड़े होते हैं, बहुत सारे पज मुर्दा चौकड़ियां भरते हैं, बीमार शिफा पाते हैं और खुदा हमारी जिंदगी से बड़े बड़े काम करता है। और फिर उसकी खिदमत जो है वो जारी रही ताबेदारी के बायस। अगर वो छोड़कर चला जाता, भूल जाता, तो खिदमत नहीं थी। खुदा ने उसको बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी कौम के लिए, अपने कौम के बादशाहों के लिए खुदा ने उसके ऊपर बड़ा काम किया और खुदा के हाथ के नीचे वो बड़ी फरोतनी के साथ रहा। हालेलुया। जमीन पर खुदा के हाथ के नीचे रहना, बाज़ हम ये सोचते हैं कि जब हम बड़ी वफादारी और ताबेदारी के साथ खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे तो सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी बातें पॉजिटिव चलेंगी। मेरे अजीजों, ऐसा भी नहीं है। बाज़ औक़ात ईमानदारों को भी मुश्किल हालात में से गुजरना पड़ता है। ताबेदारी के बावजूद भी हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार और चढ़ाव आते हैं, हमें बहुत से तूफानों का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे सामने बहुत सारे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें बुलाया है, खुदा के हम ताबेदार हैं, हम उसके कलाम पर भी चलते हैं, लेकिन फिर क्यों हमारी जिंदगी के अंदर ये मुश्किलात और ये पहाड़ और ये परेशानियां आती हैं? मेरे अजीजों, खुदा के हाथ के नीचे रहना सिर्फ सुखी और पुरअमन लाइफ गुजारना नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में परेशानियों का सामना भी हमें करना पड़ता है। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब और उसका दूसरा बाब है गालबन। ये ताबेदारी की बरकत भी है और बाज़ औक़ात जब हम ताबेदार होते हैं तो खुदा जो है वो हमें ऐसे हालात में भी जाने देता है जिसमें हम बहुत सी मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन खुदा के हाथ के नीचे हमने जो हवाला पड़ा, खुदा के हाथ के नीचे क्या रहो, फरोतनी से रहो, तो वो तुम्हें क्या करेगा? वक्त पर सरफराज करेगा। बाज़ औक़ात हम जल्दबाज हो जाते हैं, हम जल्दी करते हैं, हम ये सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, हमारे हालात बदल नहीं रहे, हमारी जिंदगी बदल नहीं रही, हमारा खानदान बदल नहीं रहा, लेकिन खुदा के मंसूबे हमारी जिंदगियों के लिए फर्क है। जब हम अय्यूब की जिंदगी पर गौर करते हैं तो लिखा है कि ऊज की सरजमीन में अय्यूब की मानंद कोई शख्स नहीं था, उसके पास बड़ा माल दौलत था, उसको खुदा ने औलाद दे रखी थी, वो बड़ा वेल सेटल्ड था, उसके पास इतनी दौलत थी कि लिखा है उसके बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारा उसका कारोबार था और वो सब कुछ चल रहा था और उसकी जिंदगी भी खुदा के ताबे थी।
کیا تھا جی؟ خدا کے تابع تھی، اور خدا خود اپنی زبان سے جو ہے وہ اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، خدا اس کے بارے میں اس کی ستائش کر رہا ہے کہ ابلیس کے سامنے، اور اس کو خدا کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے پر غور کیا ہے، تو نے اس کو دیکھا ہے اس کے حال کو؟ تو شیطان کہتا ہے کہ خداوند تو نے تو اس کے گرد بھاڑ لگائی ہوئی ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ تیرے خلاف چلے گا، وہ تو خوش ہوگا۔ تو خدا نے اس کو اجازت دی، اور خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس کو چھو لے، لیکن تو اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو جب ہم ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یک کے بعد دیگرے اس کا مال چلا جاتا ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ ماری جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا غم لگ جاتا ہے، اس کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اس کے جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں، اور وہ خود بھی بڑی موذی مرض کے اندر جو ہے وہ کرہتا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اگرچہ اس نے تابعداری کی ہے، خدا کی نافرمانی نہیں کی ہے، خدا کے کسی حکم کو نہیں توڑا ہے، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے۔ اور جب وہ گزر رہا تھا تو کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کیا کیا؟ 9ویں آیت کو ہم پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ہاللیلویا۔ تو خدا کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے جو ہیں وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے سکھ اور دکھ دونوں میں سے گزر سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ خدا کے ہاتھ اور اس کی تابعداری میں رہتے ہوئے ہم برے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے، لیکن خدا ہمیں ان میں سے گزار لیتا ہے، خدا ہمیں سیلابوں میں سے بھی گزار لیتا ہے، خدا ہمیں آگ میں سے بھی گزار لیتا ہے، وہ ہمارے سامنے سے پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم فروتنی کے ساتھ تابعداری کے اندر خدا کے ہاتھ کے نیچے، اس کے مسا کے نیچے، اس کی حضوری میں قائم اور دائم اور اس کا انتظار کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویا۔ تو اس نے کیا کہا؟ ہم خدا کے ہاتھ سے کیا پائیں؟ سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ تو خدا کے ہاتھ کے نیچے جو ہے بعض اوقات ایماندار جو ہے وہ دکھ اور مصیبت میں سے بھی گزرتے ہیں۔ اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی کرب کی صورتحال تھی جب پطرس رسول جو ہے وہ کلیسیا کو انکریج کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ نوجوانوں کو کہتا ہے کہ بزرگوں کے کیا رہو؟ تابع رہو۔ تابع رہنے کے اندر سرفرازی ہے، تابع رہنے کے اندر خدا کی حضوری ہے، تابع رہنے کے اندر ہماری خدمت بحال رہتی ہے، تابع رہنے کے اندر ہم زندگی سے بھرے رہتے ہیں، تابع رہنے کے اندر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی پہلے خط کی، پطرس کے پہلے خط کی 5ویں باب کی 6 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ وقت کا انتظار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ جلد بازی آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں تو بہت ٹائم لگ گیا ہے، لیکن خدا کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہے جو پرفیکٹ ٹائم ہے، اور خدا اپنے وقت پر ضرور اپنے لوگوں کے لیے مدد فراہم کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ان کو بچا لیتا ہے۔ خدا کی حضوری، اس کی تابعداری کے اندر رہنا جو ہے ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ میں ایک شخص کی زندگی پر غور کر رہا تھا، سمسون کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ بچپن ہی سے خدا کا کیا تھا؟ نذیر تھا، اور خدا نے جو ہے اس کے ماں باپ کو بولا کہ اس کی جو ہے وہ جو ہے اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کے سر پر کیا اس طرح نہیں لگے گا، اور یہ کوئی شراب، کوئی نشے والی چیز جو ہے وہ نہیں پیے گا اور نہ کھائے گا۔ لیکن جب اس کی زندگی آگے بڑھی تو ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک خاتون کے جو ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا،
मेरे साथ निकालिए तज़ात की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 4थी आयत। इसको तलकीन की गई थी, इसकी पैदाइश से पहले खुदा ने इसको चुना था, ये खुदा का ममसू था, खुदा ने इसको मुकर्रर किया था काजियों के दौर में कि ये मेरी कौम के लिए जो है रिहाई का और तरक्की का और बहाली का बायस ठहरेगा। और खुदा ने इसके लिए कुछ बातें जो थी वो कही थी, और खुदा ने कहा था कि इसकी बरकत का, इसके मसा और इसकी कुदरत का राज ये है कि ये इस बात की ताबेदारी के अंदर रहे। लेकिन यहां पर इससे गलती हो गई, यहां पर ये इस बात को भूल गया और इसने क्या किया कि लिखा है कि वो एक औरत से जिसका नाम दलैला था उसके इश्क में हो गया, ठीक है। और उसने क्या किया, जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं तो उसने उसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उससे वो राज उगलवा लिया जिसके बायस उसका मसा, उसकी मखसूसियत और उसकी बरकत उसके साथ जुड़ी हुई थी। उसकी ताकत का राज, उसकी भरपूरी का राज, उसकी बरकत का राज, खुदा का उसके साथ जो अहद था उसका राज उगलवा दिया गया। और लिखा है कि उसने जब अपना राज उसको बता दिया कि मेरे बाल अगर काट दिए जाएं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे ही उसके बाल काट दिए गए तो क्या हुआ, वो फिलिस्ती आ गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसने कोशिश की कि वो वैसे ही पहले की तरह बड़े जोर से उनको झटकेगा और उनको मार गिराएगा। लेकिन वो ये भूल चुका था, वो ये जानता नहीं था कि खुदा का रूह से जुदा हो गया है, खुदा की हजूरी उससे अलहदा हो गई है और वो बेजान शख्स की मानंद है। खुदा की हजूरी के बगैर, खुदा के मस्सा के बगैर, उसकी कुदरत के बगैर वो किसी को शिकस्त देने के काबिल नहीं है, वो किसी पर फतह पाने के काबिल नहीं है, वो किसी पर जो है वो तरक्की पाने के काबिल नहीं है। और जब हम देखते हैं उन्होंने उसको कैद कर लिया और वो उसको ले गए और उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई। ताबेदारी मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को आने से क्या करती है, रोक देती है। जब तक हम खुदा की ताबेदारी के अंदर रहते हैं, खुदा हमें क्या करता है, महफूज करता है, खुदा का पाक रूह हमारे साथ चलता रहता है और हम खुदा की कुदरत में, उसके मसा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। मेरे अजीजों, अगरचे हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत से मसाइल और मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले साल 16 अगस्त को जड़ावाला की कलीसिया के अंदर कैसे कुछ हालात गुजरे और कलीसियाएं बहुत सी परसिक्यूशन में से गुजरी, बहुत सारे चर्च जला दिए गए, बहुत सी इमारतों को, लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन मेरे अजीजों याद रखिए, जो लोग खुदा की ताबेदारी करते हैं, अगरचे वो इस जिंदगी के अंदर दुख उठाएं, अगरचे इस जिंदगी के अंदर घरों को जलाया जाए, अगरचे इस जिंदगी के अंदर जिस्मों को जलाया जाए, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, वो अपने लोगों के सब आंसुओं को पोंछ देगा, वो हमें अपने अपने खानदान में शामिल करेगा, वो उन मकानों में हमें दाखिल करेगा जिसका वादा उसने हमसे किया हुआ है। उसने कहा है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि तुम्हें आकर मैं अपने साथ ले जाऊं। तो खुदा ऐसी दुल्हन को, ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला है जो उसकी क्या है, ताबेदार है। ठीक है, पौलुस रसूल क्या कहता है, ऐ बीवियों अपनी शौहरों के ऐसी ही ताबे रहो जैसे खुदावन की, और कलीसिया भी जो है वो मसीह की ऐसी ही ताबेदार है। तो कलीसिया से खुदावन यीशु मसीह की ये ख्वाहिश है, उसकी ये कोशिश है, वो रूह कुद्स के वसीले से हमें सिखाता है कि हम उसकी ताबेदारी के अंदर, उसकी फर्माबरदारी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि जब वो आए तो हम बादलों पर उड़कर क्या करें, उसका इस्तकबाल करें और हमारी आंखों के वो सब आंसू पहुंचे और वो हमें तमाम दुखों से रिहाई बख्शे। आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद उन सारी बातों में हमारी मदद करे, उन सारी चीजों पर हमें गालिब आने का फजल दे जिनमें हम कमजोर हैं, ताकि हम मुकम्मल तौर पर खुदा की ताबेदारी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारें और उसके साथ बढ़ते चले जाएं।